नमस्कार साथियों, आज सुबह CWC की बैठक हुई और इस इमरजेंसी CWC बैठक में पहलगाम में जो आतंकवाद घटना घटी है, भयानक आतंकवाद घटना घटी है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई और अंत में CWC ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। अंग्रेज़ी में हमारे GS संगठन वेणुगोपाल जी इस रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे। उसके बाद पवन खेरा जी हिंदी में इस प्रस्ताव को पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं, हमारे GS संगठन और हमारे जो AICC प्रभारी और CLP अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर में मीर साहब भी मौजूद हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि इस CWC बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो आपके समक्ष रखें। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji. Good afternoon to everybody. Today we held a emergency CWC meetings to discuss the terrific Pahalgam terrorist attack. We begin the meeting with a 2-minute silence for paying homage to the deceased personalities. Honorable Congress President presided in the meeting. CPP Chairperson Srimati Sonia Gandhi, Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, and all other CWC members attended. In this meeting, we passed a resolution, which I am going to read it out. The Congress Working Committee express its deepest shock and condemnation of the heinous terrorist attack in Pahalgam, Jammu Kashmir on April 22, 2025, which claimed the lives of 26 innocent tourists and left more than 20 others grievously injured. Congress Working Committee extends its deepest condolences to the bereaved families, stands with them wholeheartedly in this moment of profound anguish. This cowardly and calculated act of terror, masterminded by Pakistan, is an assault, direct assault on the values of our republic. The deliberate targeting of Hindus was done to inflame passions across the country. We appeal for calm in the face of this grave provocation and reaffirm our collective strength in the face of adversity. The CWC appeal for calm and reaffirms the Indian National Congress' long-standing resolve to combat cross-border terrorism with determination and unity. In order to demonstrate the collection will of the nation, the CWC also pays tribute to the local poniwalas and tourist guides, one of whom was martyred while selflessly trying to protect the tourists to uphold the idea of India. In order to demonstrate the collective will of the nation, the Indian National Congress sat down that night of the 22nd itself, called for an all-party meeting chaired by the Honorable Prime Minister. The meeting has now been scheduled for today. Pahalgam is known to be heavily guarded area, security by 3-tier security arrangement. It is imperative that a comprehensive analysis is conducted into the intelligence failures and security lapses that enabled such an attack in a union territory, an area directly under the purview of the Union Home Ministry. This question must be raised in the larger public interest. This is the only way justice can truly be seen to be served for the families whose lives have been so brutally devastated.
The CWC also note the Amarnath Yatra is set to be commenced shortly. Lakhs of pilgrims from across India participate in the annual journey, and their safety must be treated as a national priority. Robust, transparent, and proactive security arrangement must be put in place without delay. The safety of pilgrims, as well as the livelihood of the people of Jammu and Kashmir, many of whom depend on tourism, must be protected with full sincerity and seriousness. The massacre has rightly drawn condemnation from all political parties in Jammu and Kashmir and from a wide cross-section of its citizens. However, it is shocking that the BJP is exploiting this grave tragedy through officials and proxy social media platform to sow further discord, mistrust, polarization, and division at a time when unity and solidarity is much needed. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। पवन खेरा जी हिंदी में। धन्यवाद जयराम जी। मैं हिंदी में ये प्रस्ताव अब आपके सामने पढ़ूंगा। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस कार्य समिति स्थानीय पोनी वाले और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक पर्यटकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने भारत की विचारधारा को जीवंत रखा। उनका बलिदान उस भारत की भावना को दर्शाता है जहां निस्वार्थ सेवा और मानवता सर्वोपरि है। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह बैठक आज के लिए निर्धारित की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति यह भी नोट करती है कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं। उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आजीविका की भी रक्षा की जानी चाहिए जिनका जीवन पर्यटन पर निर्भर करता है। यह कार्य पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। इस नरसंहार की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामान्य कश्मीरी नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से निंदा की गई। किंतु यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है, जबकि इस समय सबसे अधिक आवश्यकता एकता और एकजुटता की है। धन्यवाद।